کے کہ تعلیم اور سوشل سیکٹر جو ہیں جس میں سب سے بڑی دو شعبے جو ہیں وہ تعلیم اور صحت ہیں، اس کا بجٹ پچھلے سال میں ٹوٹل پی ایس ڈی پی کا مجموعی پی ایس ڈی پی کا 29% تھا، اس سال وہ 38% کر دیا گیا ہے۔ تعلیم کے اوپر سر ہائر ایجوکیشن، ظاہر ہے نیچے تو ایجوکیشن صوبوں کے پاس ہے، ہائر ایجوکیشن کی آپ کو اچھی خبر بتا دیں اسپیکر صاحب، اس سال جو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اپنی ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کیا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی اخراجات ہیں ایک سال کے اندر، اور جو سیکنڈ ہائیسٹ تھا پاکستان کی تاریخ میں اس سے 50% زیادہ۔ اس سے پہلے 18 ارب روپے ایک سال میں سب سے زیادہ تھا، اس سال 28 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے کیے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے۔ اسی طریقے سے اگلے سال 25% مزید اضافہ کرنے جا رہے ہیں اور 28 ارب سے بڑھا کے 35 ارب کے اوپر لے کے جا رہے ہیں۔ تو تعلیم بالکل میں ان کے ساتھ ہوں، تعلیم کے اوپر پوری توجہ، یعنی 2 سال کے اندر دگنی کر دیں گے ہائر ایجوکیشن کی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ۔ دوسری چیز صحت، سر صحت کے ڈائریکٹ اس منصوبے جو ہیں وہ تو 14 ارب روپے کے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے 50 ارب روپے کے منصوبے رکھے ہیں میچنگ گرانٹ کے اوپر صوبوں سے، تمام صوبوں سے بات ہو گئی ہے، سندھ کی ہیلتھ منسٹر سے بھی میری بات ہو گئی ہے، پنجاب کی ہیلتھ منسٹر سے، کے پی کی ہیلتھ منسٹر سے اور بلوچستان کے چیف منسٹر سے۔ انشاءاللہ تعالی 50 ارب روپے، یہ صحت کا جو نظام جو اس وقت آپ کو کمزور نظر آ رہا ہے، یہ بالکل انہوں نے ٹھیک بات کی کہ یہ اس میں بڑی سے تیزی سے اضافے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ 30 سال 40 سال سے نگلیکٹڈ سیکٹر رہا ہے جس کی قیمت آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے۔ تو اگلے سال مجموعی طور پہ صحت کے اندر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ وفاقی حکومت 65 ارب روپے خرچ کرے گی، یعنی کہ یہ 5 گنا زیادہ ہوگا اس اخراجات سے جو پچھلے سال تھے، 5 گنا اضافہ۔ اسپیشل ایریا سر، مجھے بہت خوشی ہے، دل سے اس بات کی خوشی ہے، مکسی صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، زبیدہ جلال بیٹھی ہوئی ہیں، سب سے زیادہ ایلوکیشن فیڈرل پی ایس ڈی پی کے اندر جن منصوبے کے اوپر ہو رہی ہیں وہ بلوچستان کے اندر ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ شیئر اس وقت بلوچستان کا ہے۔ ہمارے جو سابقہ قبائلی ضلع ہیں جی، وہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خصوصی طور پہ 100 ارب روپے رکھے گئے ہیں یہاں پہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر، پاکستان کو سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر، ملک کو چلانے کے اندر کلیدی کردار ادا کرنے والا شہر، خصوصی توجہ کا حقدار ہے۔ سب سے زیادہ پانی کی کمی ہے، K4 کے منصوبے کے لیے میکسیمم جتنی میرے پاس لیگل لمٹ تھی ہم نے وہ ڈال دی ہے۔ سندھ حکومت کے پاس ٹیکنیکل کمیٹی کا پیسہ رپورٹ رکھی ہوئی ہے۔ میں نے این ای سی میٹنگ میں بھی اپیل کی تھی، سندھ چیف منسٹر سے دوبارہ اپیل کرتا ہوں، نوید قمر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان سے بات کریں، یہ بھی کراچی میں رہتے ہیں۔ جتنی جلد سندھ حکومت سے ہمارے پاس ان کی فائنل ریکمنڈیشن آ جائے گی، K4 کے منصوبے کو انشاءاللہ تعالیٰ سے ان کے ساتھ مل کے شروع بھی کریں گے اور مکمل بھی کریں گے۔ KCR کراچی کا 30 سال پرانا ڈیمانڈ، سپریم کورٹ کے فیصلے سے وہ کیونکہ سندھ حکومت اس پہ کارروائی نہیں کر رہی تھی، وفاق کے پاس آ گیا ہے۔ اس سال کے ترقیاتی بجٹ میں اس کا پہلا فیز شامل کر دیا گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کے اندر KCR مکمل کر کے دکھائیں گے۔ گرین لائن کا منصوبہ جو پہلے سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے، گرین لائن کے منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے پورے فنڈز رکھ دیے گئے ہیں، اس مالی سال کے اندر انشاءاللہ گرین لائن مکمل ہو جائے گی۔ کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ، سیویج کا بہت بڑا مسئلہ ہے کراچی کے اندر، یہ سندھ گورنمنٹ سے آیا تھا پروپوزل، ہم نے اس کے لیے پیسے رکھے ہیں وفاقی بجٹ کے اندر، وہ پورا کریں گے۔ سی پیک کے اوپر بات کی گئی کہ سی پیک کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اگلے سال اسپیکر صاحب آپ کو خوشی ہوگی کہ 77 ارب روپے سی پیک کے منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ سب سے بڑی چیز، اللہ تعالیٰ شیخ رشید کو جلد صحت یاب کرے، بڑے دل سے جی وہ ML1 کے لیے محنت کرتے ہیں، بار بار میرے ساتھ فالو اپ کرتے ہیں۔ شیخ صاحب گھر پہ سن رہے ہوں گے، ان کو بھی خوشی ہے، مجھے بھی خوشی ہے، ML1 حقیقت بننے جا رہا ہے، اگلے سال سے اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا۔ یوب کچھ لاکھ روڈ، یارک یوب، پھر ہماری برہان حقلہ روڈ، یہ جو بڑی سڑکیں ہیں سی پیک کی، ان کے اوپر کام جاری رہے گا۔ لاہور مٹیاری ٹرانسمیشن لائن مکمل کی جائے گی۔ اس سال جو ہے ہب چائنا کا 1320 میگا واٹ کا پلانٹ اور اینگرو تھر کا 660 میگا واٹ کا پلانٹ، 2000 میگا واٹ کی نئے بجلی کے منصوبے سی پیک کے مکمل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ چپال الیکٹرک کا 330 میگا واٹ کا فائنینشیل کلوز ہوا ہے، اور تھر کی بلاک 1 کی 7.8 ملین ٹن کی مائننگ کے پروجیکٹ کا فائنینشیل کلوز ہوا ہے۔ اور آخری چیز سی پیک کے اندر
3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बिकॉज हमें सनत लगानी है, लोगों को नौकरियां देनी है। फैसलाबाद, रशकाई, बोस्तान बलोचिस्तान में, रशकाई खैबर पख्तूनख्वा में 3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की मंजूरी दी गई है और उनके ऊपर फिजिकल काम शुरू हो चुका है। तो ये सीपेक की प्रोग्रेस है जी। सेकेंड लास्ट चीज, सिंध के अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ी डिमांड है, बड़ी जायज डिमांड है। पूरे पाकिस्तान में मोटरवे कंप्लीट हो गई है, लेकिन सक्कर हैदराबाद का पोर्शन जो है वो मुकम्मल नहीं है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर पीपीपी अथॉरिटी जो बनी है, जिसको मैं चेयर करता हूं, उसने जो पहला बड़ा मंसूबा जिसकी मंजूरी दी है, 206 अरब रुपए का मंसूबा है, वो हैदराबाद से सक्खर का मोटरवे है। इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर इस साल काम शुरू हो जाएगा और 50 अरब रुपए इस साल इंशाअल्लाह उसके ऊपर अखराजात भी आ जाएंगे। आखिरी चीज पानी, और पानी के अंदर क्यों जरूरी है। 2/3 पाकिस्तान ज़राअत के ऊपर इन्हिसार है और ज़राअत की जो सांस लेना जो है वो पानी पर मुनहसर है। बदकिस्मती से हमने इसको निगलेक्ट किया है, ये जो है ये निगलेक्ट का शिकार रहा है। आपको खुशी होगी और मेरे ख्याल में स्पीकर साहब, क्योंकि आपकी भी बड़ी जिद्दोजहद है जहां पे हम आज पहुंचे हुए हैं, आपको फख्र भी होगा ये सुन के कि इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा हो रहा है 3 बड़े हाइडल प्रोजेक्ट एक वक्त में इस वक्त काम हो रहा है उनके ऊपर। ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। दियामीर बादशाह डैम, मोमन डैम, दासू डैम, मजमूई तौर पर 7,460 मेगावाट बिजली की कैपेसिटी, 7,460। ये कागजों के ऊपर तो कुछ 100 दफा हो चुके हैं, ग्राउंड पे काम पहली दफा शुरू हो रहा है। बलोचिस्तान के अंदर पानी की जरूरत भी है और मेरे ख्याल में, और बलोचिस्तान के जितने हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहां बैठे हैं इनको पता है, बहुत बड़ा पोटेंशियल भी है वहां पे। अगर हमने लोगों की जिंदगी बेहतर करनी है, उनको आमदनी दिलानी है, ज़राअत बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है, लेकिन पानी की कमी है। इसलिए कच्ची कैनाल का जो आगे डेवलपमेंट वाला जो फेज है जी, वो इसके अंदर शुरू हो रहा है और इंशाल्लाह इसको मुकम्मल किया जाएगा। और 2 पुराने डैम जो बहुत अरसे से रुके हुए थे, नौलंग डैम और बिंदर डैम जो है, वो दोनों उनकी अप्रूवल हुई है, वो दोनों पे इंशाल्लाह ताला काम शुरू होगा और साल के दरमियान कोशिश करेंगे इनकी एलोकेशन भी बढ़ाएं, फंडिंग भी इनकी बढ़ाए। सिंध में कोटरी के डाउन स्ट्रीम जो लोग जानते, नवीद कमर साहब बहुत अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं, सी वाटर इंक्रोचमेंट हो रही है, वहां पे फ्रेश वाटर की कमी होती है कई सालों के अंदर। डाउन स्ट्रीम ऑफ कोटरी बैराज सिंध बैराज बनाने का मंसूबा है, उसकी फीजिबिलिटी के पैसे शामिल कर दिए गए हैं। इंशाअल्लाह ताला वो फीजिबिलिटी मुकम्मल होगी और ये मंसूबा जो सिंध की कोस्टल बेल्ट के लिए खासतौर पर इंतहाई जरूरी है, उसको मुकम्मल किया जाएगा। और आखिरी मंसूबा जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जी ये हक है कि उनको भी अपना इर्सा का जो पानी का वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक पूरा है शेर, वो पूरा मिले। शगुफ्ता जवानी साहबा, मोहतरमा, आप इतनी जोर जोर से नारे लगा रही हैं, बगैर माइक की आपकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही है। आप सब्र से सुने, सब्र से सुने प्लीज, सब्र से सुने जी सर, वो सब्र से सुने आप। बिल्कुल शुक्रिया स्पीकर साहब, लेकिन शगुफ्ता जुमानी का वो कहते हैं ना हक नमक हलाली करनी चाहिए। इन्होंने हमें बहुत अच्छा ये नेज क्या वो नोज कैफेटेरिया के अंदर वो हमारा ख्याल रखती थी, तो इनकी कोई बात नहीं। सर, चश्मा राइट बैंक कैनाल का प्रोजेक्ट दिया खान के अंदर जमीन मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक है। इंशाअल्लाह ताला वो बहुत अरसे से निगलेक्टेड प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर हमने काम शुरू करना है, फीजिबिलिटी मुकम्मल करनी है। ये सब इमरान खान साहब की उस सोच की नतीजा है जिसका मुतालबा ख्वाजा आसिफ कर रहे थे। ख्वाजा आसिफ ने बिल्कुल कहा कि अगर कहीं और से पैसा काटना भी पड़े तो आप तरक्याती काम को फिर भी ना कम करें। मैं वो एग्जैक्ट चले आपको अमाउंट नहीं बताता, लेकिन जो शुरू में बजट बना था वो अमाउंट इससे कम थी, इससे बहुत कम थी। और वो जो उसके अंदर तरक्याती मंसूबों के लिए पैसा बढ़ाया गया वो मैंने नहीं बढ़वाया, वो खुद इमरान खान ने कहा कि कुछ भी हो जाए इस वक्त हमने अपना तरक्याती अमल को सुस्त नहीं होने देना, चाहे कहीं और से पैसा काटना पड़े वो काट लो। इसीलिए उन्होंने 120 अरब रुपए दोबारा इजाफा कराया। इंशाअल्लाह ताला वो कह रहे थे एक ईंट कहीं दिखा दें, हम इनके दौरों का इंतजाम कर लेंगे। एक ईंट नहीं, पाकिस्तान के एक कोने से आखिरी कोने तक ईंट ही ईंट इनको दिखाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी।
وزیر منصوبہ بندی اسد عمر قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ سخت لاک ڈاؤن کی پالیسی کہیں بھی پوری دنیا میں کامیاب نہیں ہوئی. امریکہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. دنیا کے امیر ترین ملک میں بھی 40 ریاستوں نے حکم عدولی کرتے ہوئے لاک ڈاؤن میں نرمی کی. بھارت میں بھی یہ تجربہ جو ہے وہ بری طرح سے ناکام رہا ہے. ناظرین ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے ملاقات کریں گے لائیو شو میں. دنیا کی کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کی خواتین مردوں کے شانہ بچانا معاشرے کی تعمیر و ترقی میں حصہ نہ لیں. عورتوں کو گھر کی 4 دیواری میں بند کرنے والے انسانیت کے مجرم ہیں. انقلاب ہو پیدا عجب نہیں ہے کہ یہ 4 سو بدل جائے. یہ منظرنامہ ہے. منظرنامہ یہاں روز حالات بدلتے ہیں، واقعات بدلتے ہیں. کل کے حریف آج کے ساتھی، کل وہ ساتھی تو آج حریف. کہتے ہیں سیاست میں کچھ حرف آخر نہیں، لیکن کیا یہ بدلتے منظرنامے ملک و قوم کے لیے بھی مفید ہیں؟ عوام کو کرپشن سے نجات، انصاف اور اچھے معیار زندگی دیتے ہیں؟ اب رہے کہ تمام بدلتے حالات اور واقعات پر نظر. ہوں گے بے باک سوالات اور پوچھیں گے آپ سے کیا بدلی آپ کی رائے. بدلتی رائے دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 7:05 پر صرف PTV نیوز پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو نیوز شو کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں رضوان رونق اور آسماء اقبال. ناظرین آج 5 سے ایسے موضوعات جن پر ہم بات کرنے والے ہیں. پہلے کچھ آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کرونا کے حوالے سے آج ہم لازماً بات کر رہے ہوں گے. روزانہ کی طرح آپ کو بتائیں گے کہ کرونا کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اس پر ہم نے دیکھا کہ مختلف جو محکمے ہیں، مختلف جو انتظامیہ ہیں، وزرائے اعلیٰ ہیں، مختلف جو صوبے ہیں، ان سے مشاورت کے بعد حکومت نے کچھ SOPs جاری کیے تھے. ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. ان کی خلاف ورزی دیکھنے میں آ رہی ہے اور اس سلسلے میں اب لوگوں پر سختی کی جا رہی ہے، جرمانے کیے جا رہے ہیں. آج اس کو لے کر کیا صورتحال رہی، کہاں کہاں خلاف ورزی دیکھنے میں آئی ہے، پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں گے ٹڈی دل کو لے کر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ہماری فصلوں کو اس سے بہت بڑا نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے. فوڈ سے سیفٹی، فوڈ سیکورٹی کا یہ ایشو ہے، تو اس پر بھی آج کے پروگرام میں بھی لازماً ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ ناظرین پنجاب اسمبلی میں پنجاب کا 2020-21 کا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے. 22 خرب 40 ارب 70 کروڑ سے زائد کا حجم ہے پنجاب کا، اور اس میں تعلیم کے لیے بھی خاطر خواہ فنڈز جو ہے وہ مختص کیے گئے ہیں. ہاشم جمع بخش جو صوبائی وزیر خزانہ ہے انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے. ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ عمران خان کے ویژن کو آگے رکھ کر ہم نے بجٹ پیش کیا ہے. مشکل حالات ہیں، نامساعد حالات ہیں. اب تمام کے علم میں ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے معیشت کو بری طرح سے دھچکا لگا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری کوشش یہ ہے کہ عوام کے لیے بہترین انداز میں بجٹ پیش کیا جا سکے. اس کے بعد ایک اور جو آسما ایک اچھی خبر بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کھیلوں کے میدان آہستہ آہستہ دوبارہ سے آباد ہونا شروع ہو گئے ہیں. ناظرین یورپین لیگ جو ہے وہ جاری ہے، جرمن لیگ بھی، اسپینش لیگ بھی شروع کر دی گئی ہے. گو کہ بند دروازوں کے پیچھے کھیلی جا رہی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی کھیلوں کے میدان آباد ہونا شروع ہو گئے ہیں. کھلاڑی
جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یورپ میں اب آہستہ آہستہ زندگی جو ہے وہ دوبارہ سے رواں دواں ہونا شروع ہوئی ہے۔ فرانس میں جو ہے وہ پابندیاں کم کر دی گئی ہیں، برطانیہ میں، جرمنی میں، اسپین میں، ہر جگہ پر جہاں پر یورپ میں یہ زیادہ پھیلا تھا وہاں پر اب پابندیاں نرم کرتے ہوئے آہستہ آہستہ زندگی کی جانب لوٹ رہے ہیں لوگ۔ بالکل جی، ان تمام ٹاپکس سمیت اور بھی بہت ساری سٹوریز ہیں، بہت ساری خبریں ہیں جن پر آج کے نیوز شو میں ہم بات کر رہے ہوں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں۔ طاقت جس کے دل میں موجود ہو وہ چاہے کسی بھی مشکل میں گر جائے، ایمان اسے ہمیشہ ثابت قدم رکھتا ہے۔ جذبات میں آ کے روانہ تو ہو گیا ہے لیکن واپس آتا بھی ہے یا نہیں؟ ہم آ گئے ہیں بھائی، بس اب بہت ہو چکا، اب تمہاری منمانی نہیں چلے گی سلیمان شاہ۔ میں تیار ہوں سادیا، اپنے بھائیوں کی طرح مسلمانوں کے خلاف حاضر ہوں۔ بھائی کو بھائی کا اور باپ کو بیٹے کا دشمن بنا دوں گا۔ اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ ہی بچائے گا، اور کون؟ ویلکم بیک جی، پروگرام کا کرتے ہیں باقاعدہ آغاز، اور سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے پنجاب کے حوالے سے۔ آپ کو ہم نے پروگرام کے آغاز میں بھی بتایا کہ پنجاب کا 22 خرب 40 ارب 70 کروڑ روپے سے زائد کا بجٹ آج وہاں کی صوبائی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ تعلیم کے لیے، صحت کے لیے اور دیگر جو عوام سے ریلیٹڈ منصوبے ہیں ان کے لیے بھاری جو رقم ہے وہ مختص کی گئی ہے۔ کہاں کس شعبے پر خصوصی توجہ دینی تھی اس پر بحث تو بہت پہلے سے ہو رہی تھی، تجاویز جو ہیں ان پر بھی غور ہو رہا تھا، اپوزیشن سے بھی مشاورت کی گئی ہے، مختلف جو لوگ ہیں، مختلف طبقہ ہائی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں ان سے بھی مشاورت ہوئی ہے، اور بہت زیادہ بحث مباحثے کے بعد بالآخر اس کو ایک شکل دی گئی، اور آج وہ شکل جو ہے ہمارے سامنے آ گئی ہے رضوان، پنجاب اسمبلی کے بجٹ کی صورت میں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اس میں آپ ناظرین سے یہ بھی شیئر کر لیں کہ 20 سے زائد جو سروسز ہیں ان پر ٹیکس 16% سے کم کر کے جو ہے وہ 5% کر دیا گیا ہے، اور خاص طور پر اس میں صوبائی وزیر خزانہ ہاشم جمع بخش جو کہ بجٹ پیش کر رہے تھے، انہوں نے یہی بتایا کہ یہ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن آسٹیریٹی ڈرائیو کو مد نظر رکھ کر اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے۔ ریلیف دیا گیا ہے بہت سارے شعبہ زندگی میں اس طرح سے کہ تمام کے تمام لوگوں کو ایڈریس کیا جا سکے۔ جنوبی پنجاب کے حوالے سے بھی خاص طور پر بہت سارے فنڈز مختص کیے گئے ہیں، اور اس میں خاص طور پر ان کا یہ کہنا تھا کہ اسمبلی میں جب انہوں نے بجٹ پیش کر رہے تھے کہ تعلیم اور صحت خاص طور پر، اور اس میں آسما یہ بھی ہم ناظرین سے شیئر کریں کہ جو کرونا کے حوالے سے جو فرنٹ لائن واریئرز ہم ان کو کہتے ہیں، فرنٹ لائن واریئرز ہیں، ان کے لیے ایک تنخواہ جو ہے وہ بھی باقاعدہ طور پر بیسک جو بنیادی تنخواہ ہوتی ہے وہ اس میں اضافہ جو ہے وہ ایک اضافی تنخواہ ان کو دی جائے گی۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں بیسیکلی آج کل کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پچھلے 3-4 مہینے میں جو کورونا وائرس نے جو معیشت کو دھچکا لگایا ہے اس کے باوجود بہترین بجٹ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے پنجاب جو کہ سب سے بڑا صوبہ ہے۔ دیکھو جی، اب پنجاب میں اس بجٹ کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے، کیا اس کے فیچرز ہیں، اس بارے میں ہم بات کریں گے ہما صدف سے، ہماری رپورٹر ہیں لاہور سے، اکثر ہمیں رپورٹ کرتی ہیں اور آج ہمارے ساتھ بالکل موجود ہیں لاہور اسٹوڈیو سے براہ راست۔ السلام علیکم ہما صدف۔ وعلیکم السلام۔ ہما بتائیے گا، پنجاب کا 22 کھرب روپے سے زائد کا بجٹ پیش کیا گیا، کچھ اس کے چیدہ فیچرز اگر آپ ہم سے پہلے تو شیئر کر سکیں، پھر ہم چاہیں گے کہ آپ سے اس بارے میں ڈیٹیل میں بھی بات کریں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے بتایا ہے 22 کھرب سے زائد کا، اس میں یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس کے اندر ترقیاتی 337 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ 56.5 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس ریلیف
पैकेज सिर्फ इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो हमारी मईशत है वो इस वक्त कोविड-19 से मुतासिर है। इसको बहुत अहमियत दी जा रही है क्योंकि बहुत मुश्किल टाइम था, कोरोना के बाद बहुत माशी बुहरान आया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आगे बढ़ो पंजाब के विजन के तहत वज़ीर आला पंजाब और पूरी टीम ने इस बात का खास ख्याल रखा कि जो मईशत जो है, जिसको जो नुकसान पहुंचा है इस वबा की वजह से, उसको अपने पांव पे खड़ा किया जा सके। जैसा कि आपने अभी भी बताया कि टैक्स में कितना रिलीफ दिया गया है और ये 56.5 अरब रुपए से ज्यादा का टैक्स रिलीफ पैकेज है। तो इसमें ये कोशिश की गई है कि सनतों को इस तरह का दिया जाए कि ज्यादा बिजनेसमैन यहाँ पर आए और जो छोटे काम करने वाले हैं, छोटा कारोबार करने वाले हैं, उनको आसानी हो। इवन प्रॉपर्टी टैक्स जो अदा करते हैं, ये पहली बार हुआ कि उनको कहा गया कि अगर एक तो वो 2 एक साथ में अदायगी कर सकेंगे, इसके अलावा अगर 30 सितंबर 2020 तक मुकम्मल टैक्स की अदायगी करें तो जो पहले 5% उनको रिबेट मिलता था वो 10% कर दिया। फिर कंस्ट्रक्शन की तरफ बहुत ध्यान है क्योंकि कंस्ट्रक्शन अगर चलता है तो फिर उससे बहुत सारे रोजगार के मौके जो हैं वो मैसर आते हैं। मजदूर जो है ग्रास रूट लेवल पे वो बुनियादी तौर पर मुंसलिक होता है कंस्ट्रक्शन के शोबे से, इसलिए उसको भी कोशिश की जा रही है कि फरोग दिया जाए। उसके हवाले से जो स्टैंप ड्यूटी थी उसको 5% से कम करके 1% कर दिया गया है। और जो सेहत का शोबा है, जो बाज़ शोबे जिनके अंदर बजट में इजाफा किया गया, उसमें सेहत का शोबा है, उसमें तालीम का शोबा है, उसमें पुलिस के लिए रकूम है, उसमें रोजगार की फरामी है। ये जो बजट है इसको कहा गया है कि शमूलियाती बजट है, मतलब ये कि इसमें अवाम से महकमा खजाना ने राय और सिफारिशात तलब की थी। उसके नतीजे में उन्होंने 11 ऐसे शोबाजात की निशानदही की जिसमें अवाम का ख्याल था कि ज्यादा रकूम मुख्तस की जानी चाहिए, जिनमें जैसे कि आपको बताया कि सेहत और तालीम का शोबा और रोजगार की फरामी सर फहरिस्त था। तो उसके हवाले से इकदाम किए गए और उसमें खसूसी रकूम जो है वो बताइएगा। मोहम्मद सदफ, ये बताइएगा कि ज़राअत, चूँकि पंजाब में ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि ज़राअत सबसे बड़ा सोर्स भी है लोगों का, रोज़गार का भी और इनकम का भी, और उसके साथ साथ ख़जाना भरने में भी जो है वो सबसे बड़ा सोर्स ज़राअत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होता है पंजाब का ख़ास तौर पर। तो ज़राअत के लिए कोई ख़ास पैकेजेस अनाउंस किए गए हों, कोई इंसेंटिव्स दिए गए हों, ख़ास तौर पर छोटे किसानों को मद्देनज़र रखते हुए? जी बिल्कुल, इस वक्त तो पंजाब, वैसे तो पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है और पंजाब तो ज़रूरी सूबा है, बुनियाद है किसान और ज़राअत पंजाब की। और इस टाइम जो टिड्डी दल का एक कुदरती आफत आई है, तो नागहानी आफात से निपटने के लिए मजमूई तौर पर ज़राअत में 4 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस की गई है। और इसके अलावा ज़राअत के शोबे के लिए अगर मजमूई तौर पर देखें तो 31 अरब 73 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है। इसमें फिर आगे इसकी जो तफसील है, इसमें खादों के लिए, बीजों के लिए उनको सब्सिडाइज किया गया है, लाइटिंग के लिए शमसी तवानाई, ट्यूबवेल, और उसकी जब हम तफरीक देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दी गई हैं जिसका मकसद यही है कि बुनियादी तौर पर किसान को फायदा मिले और छोटे किसान को फायदा मिले। और जब छोटे किसान को फायदा मिलेगा, नागहानी आफत टिड्डी दल जैसी जो है उस पर काबू पाया जा सकेगा, तो जाहिर है ज़रूरी मुल्क है, जब ज़राअत ऊपर जाती है तो सनत भी ऊपर जाती है, आम आदमी ऊपर जाता है, चीजें जो हैं बुनियादी जरूरियात हैं, इजनास हैं, उनकी कीमतें भी कंट्रोल में होती हैं। तो इसको खास तौर पर इस पर देखा गया है लाइफ स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट के लिए 13 अरब रुपए 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका पंजाब में ऐसा भी है जो ज़राअत के बाद ये काम करता है, डेयरी के शोबे से वाबस्ता है और लाइफ स्टॉक के शोबे से वाबस्ता है। इसी तरह आबपाशी के लिए भी रकूम जो है वो मुख्तस की गई हैं। सुबह पंजाब में सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए भी एक नया पाकिस्तान मंजिल आसान जारी था, उसमें दूसरा मरहला शुरू हुआ है। पहले 15 अरब रुपए थे, अब दूसरा मरहला शुरू हो गया जिसके लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं। महकमा आबपाशी को 37 अरब 40 करोड़ रुपए की रकम मुहैया की जा रही है, क्योंकि आबपाशी का निजाम बेहतर होगा, पानी मैसर आएगा, तो जाहिर है कि जैसे कि आपने भी कहा कि ज़राअत का इतना अहम शोबा है वो फले फूलेगा। तालीम के शोबे में मजमूई तौर पर 351 अरब रुपए से जायद की रकूम रखी गई है। 5 लाख से जायद तलबा को वज़ाइफ देने का और मुफ्त दरसी कुतुब देने का मंसूबा है। 7 से जायद नई यूनिवर्सिटियां कायम करने का मंसूबा है, ताकि हायर एजुकेशन जो है उसके लिए भी, उसकी बहाली का काम भी हो, उसमें भी बेहतरी आए और उसको भी सूबे में फरोग मिले। जी अच्छा, हमें कुछ सेहत के हवाले से बताइएगा। हमारे पास जो आदाद शुमार है 2 खरब रुपए से जायद का बजट इसके लिए मुख्तस किया गया है। कोरोना की वजह से हम देख रहे हैं बजट मुतासिर भी हुआ, उस तरह से बहुत सारी जगहों पर हम पैसा जो है मुख्तस नहीं कर पाए, जैसे अगर कोरोना नहीं होता तो हम कर सकते थे। कोरोना का बजट भी इसी में शामिल है, ये जो 2 खरब रुपए है, या उसके लिए अलग से कोई बजट मुख्तस किया गया है इसमें?
جی پہلے تو جب کووڈ آیا تو وفاقی حکومت کا جو ریلیف پیکج تھا اس میں صوبائی حکومت نے بھی اس میں حصہ لیا اور وہ سب اچانک وبا تھی، پوری دنیا نے اس کا سامنا کیا اور اس میں بہت اچھے طریقے سے وفاقی حکومت نے حصہ لیا، صوبائی حکومت نے حصہ لیا اور تمام جو ملک ہے اس میں گراس روٹ لیول پر امداد تقسیم کی. اس کے علاوہ صحت کارڈ جو ہے وہ بھی شروع کیا گیا تھا، اس کو بھی جاری رکھنے کا خیال ہے. باقی جو جیسے کہ آپ نے کہا اسپیشلائزڈ ہیلتھ اور پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ، اس کو جو ہے اسپیشل طور پر اس کا حجم بڑھایا گیا ہے کیونکہ یہ سارا کا سارا کرونا آنے کے بعد پوری دنیا میں پرائورٹیز چینج ہوئی ہیں اور جتنی بھی سمجھدار قومیں ہیں اور حکومتیں ہیں انہوں نے اپنی توجہ صحت کی طرف کی ہے. تو ظاہر ہے کہ اسی طریقے سے پنجاب میں بھی یہ کام کیا گیا. اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے لیے اگلے مالی سال میں 6 ارب روپے سے زائد کی لاگت سے منصوبوں کو مکمل کیا جائے گا، جن میں ڈی جی خان، گجرانوالہ اور ساہیوال کے DHQ ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن بھی شامل ہے. مسنگ فیسلٹیز کے حوالے سے بھی کام کیا جائے گا. انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن راولپنڈی پر بھی کام کیا جائے گا. اسی طرح ہیلتھ سیکٹر کی سروس ڈیلیوری میں جو ہیومن ریسورس ہے ان پر بھی کام کیا جا رہا ہے. جو ہسپتالوں میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اسامیوں پر بھرتیاں مکمل کی جائیں گی. جب افرادی قوت پوری ہوگی. اچھا بالکل ہما صدف، یہ صحت کے حوالے سے آپ بتا رہی ہیں، صحت کے حوالے سے پنجاب میں جو رقم مختص کی گئی تھی وہ آپ نے بتائی. میں چاہوں گا کہ مختصراً ذرا شیئر کیجئے گا کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو ترقیاتی اخراجات ہوتے ہیں اس میں کون کون سے بڑے بڑے منصوبے ایسے اگر آپ کچھ شیئر کر سکیں جن کے لیے فنڈز مختص کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ صحت کے حوالے سے، روزگار کی فراہمی کے حوالے سے، بزنس مین کو سہولیات دینے کے حوالے سے بہت سارے ایسے ٹیکسز ختم کیے گئے ہیں جس سے بزنس مین کو کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ وہ یہاں پر آئے اور پنجاب میں سرمایہ کاری کرے. مزدوروں کے حوالے سے ایسا ایک پروگرام شروع کیا جا رہا ہے جس سے ان کو زیادہ مواقع میسر آئیں گے. ٹیپٹا کے تحت جو ہے لوگوں کو فنی تعلیم دینے کا منصوبہ شروع کیا گیا، جہاں ایک طرف ہائر ایجوکیشن کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، وہاں فنی تعلیم کی طرف بھی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ ہیومن ریسورس بہتر ہو سکے. زراعت لے لیں، آپ پاشی لے لیں یا سڑکیں لے لیں، ہر چیز کی طرف توجہ دی گئی ہے. زندگی کا اس حوالے سے بجٹ جو ہے وہ مختص کیا گیا ہے، رقم مختص کی گئی ہے اور کوئی بھی شعبہ میں ایسا دکھائی نہیں دیتا ہے جس کو اگنور کیا گیا ہو اس بجٹ کے اندر. بہرحال جی ہما صدف آپ ہمارے ساتھ موجود تھی لاہور سے، اور آج جو پنجاب کا 22 خرب روپے سے زائد کا بجٹ پیش کیا گیا ہے، 22 خرب 40 ارب 70 کروڑ کا، اس بارے میں ہمیں ڈیٹیل سے آگاہ کری تھی. آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ ہما. جناظرین ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آئیں گے اور دیگر ایشوز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. طاقت عوامی نمائندوں کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچا سکتی ہے اور عوام کی خاطر کیے جانے والے فیصلوں کے ثمرات عوام تک پہنچانا ان ہی نمائندوں کا فرض ہے. انہی عوامی نمائندوں سے پوچھیں گے سوال اور کریں گے عوام کے حقوق کے تحفظ کی بات، عوامی مسائل کے حل کی بات، عوام سے عوام تک. دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 8:05 پر صرف PTV نیوز پر. کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں مضبوط قوت مدافعت انتہائی اہم ہے. یہ ہیں کچھ ایسی غذائیں جو ہماری قوت مدافعت بہتر بنانے میں بے حد مفید ہیں. ادرک میں سانس کی نالیوں کے انفیکشن کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے خصوصیات موجود ہوتی ہیں. اس میں پائی جانے والی جنجرول کی بے شمار مقدار نظام ہضم کو ٹھیک رکھتی ہے. لہسن کا استعمال بھی جسم میں قوت مدافعت بڑھاتا ہے. غذا میں اس کا استعمال نہ صرف نقصان دہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے بلکہ شریانوں کو بھی کشادہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. کرکیومن ہلدی کا بنیادی جز ہے. اس میں ورم کش خصوصیات ہوتی ہیں اور یہ جوڑوں اور پٹھوں کے امراض میں مفید ہے.
शुरू में कहा कि ये सरफेस पे होता है लेकिन हवा में नहीं है, और आपने देखा कि मुख्तलिफ हल्के जो मेन फोरम्स हैं वहाँ से ये इतला दी गई कि मास्क लगाना इतना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जी मास्क लगाना लाजमी है क्योंकि ये हवा से इसकी ट्रांसमिशन ज़्यादा है जबकि सरफेस से कम। एहतियात अपनी पूरी करनी है, जो SOPs हुकूमत ने दिए हैं, जारी किए हैं, उनका अगर हम इस्तेमाल करेंगे और अपनी तरफ से अपने हिस्से का काम पूरा करेंगे तो बाकी हम अल्लाह से मदद मांगेंगे और अल्लाह की खैर मांगेंगे। हुकूमत अपना पूरा काम कर रही है, पूरी जिम्मेदारी से कर रही है, क्योंकि हुकूमत अवामी नुमाइंदे हैं और अवाम को जवाबदेह हैं। ये मंजरनामा है, मंजरनामा। यहाँ रोज हालात बदलते हैं, वाकयात बदलते हैं। कल के हरीफ आज के साथी, कल हो साथी तो आज हरीफ। कहते हैं सियासत में कुछ हरफे आखिर नहीं, लेकिन क्या ये बदलते मंजरनामे मुल्क को कौम के लिए भी मुफीद हैं? अवाम को करप्शन से निजात, इंसाफ और अच्छे मयार जिंदगी देते हैं? अब रहे कि तमाम बदलते हालात और वाकयात पर नजर, होंगे बेबाक सवालात और पूछेंगे आपसे क्या बदली आपकी राय। बदलती राय देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 7:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। जनाब वेलकम बैक। अब कुछ बात कर लेते हैं कोरोना के हवाले से, क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत अपनी हिकमत अमली के तहत, अपने विजन के तहत जो है वो कोरोना से निमटने के लिए तमाम के तमाम स्ट्रेटजीज जो है वो बनाती हुई नजर आ रही है। इसी हवाले से आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक जायजा इजलास भी हुआ है, जिसमें खास तौर पर जो वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है स्मार्ट लॉकडाउन का, ये जो अपनी स्क्रीन पर फुटेजेस देख रहे हैं, स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से बाकायदा हिदायत जारी की गई हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से सूबों को, कि वो सूबों में इस बात को इंश्योर करें कि जहां पर भी हॉट स्पॉट्स कहा जाता है, आसमा कहा जा रहा है उनको, इसमें जहां पर हॉट स्पॉट्स हैं, जो जिन जगहों पर बहुत ज्यादा कोरोना के पेशेंट्स जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं, रजिस्टर हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, तो वहां उन जगहों को जो है वो लॉकडाउन किया जाए, उन जगहों को पाबंद किया जाए, सील किया जाए, और ताकि ना वहां पर कोई आ सके ना जा सके, ताकि बाकी शहर में अपनी सरगर्मियां जो है वो कारोबारी हैं, माशी हैं और वैसे हैं समाजी सरगर्मियां हैं वो जारी रहें। तो ये स्ट्रेटेजी अब अपनाई गई है, जिसके तहत आपके इल्म में होगा कि लाहौर में भी बहुत सारे इलाके हैं ऐसे, बहुत सारी टाउन्स हैं जिनको जो है वो सील किया गया है। इसी तरह रावलपिंडी है और बहुत सारे ऐसे इलाके, फैसलाबाद है, जो बड़े शहर हैं जहां पर ज्यादा कोरोना जो है वो कोरोना केसेस रजिस्टर हो रहे थे, तो वहां पर अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल जी। और एक और चीज और बड़ी जरूरी और बड़ी अहम चीज जिसका नोटिस लिया गया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से, वो ये है कि मुल्क में बहुत सी अद्वियात जो बहुत आसानी से मिल जाया करती थी, अब उनकी किल्लत का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। यानी लोग ये चाह रहे हैं कि उनको स्टॉक कर लिया जाए, छुपा लिया जाए, और जब जरूरतमंद अफराद उनके पास पहुंचे ये लेने के लिए तो फिर इनको ब्लैक में फरोख्त किया जाए, और ऐसा हमने बहुत सारी जगहों पर होता हुआ देखा है। प्लाज्मा ही की बात कर लीजिए, प्लाज्मा के हवाले से जब ब्लड लोग डोनेट कर रहे हैं, जो सेहतयाब हो रहे हैं, तो हम तक खबरें आ रही हैं कि ऐसे लोग भी अपना प्लाज्मा जो है वो फरोख्त कर रहे हैं, तो फिर दवाएं कैसे भी इतनी आसानी से मुल्क के अंदर मिल सकती हैं। मतलूबा अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए चेयरमैन NDMA को हिदायत कर दी गई है, और इस बारे में वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कहा है कि अगर ये अद्वियात जो लोग ब्लैक कर रहे हैं या स्टॉक कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करना पड़ती है, तो ये कार्रवाई करने से भी गुरेज न किया जाए, ताकि आम आदमी तक ये जो अद्वियात हैं जो जान बचाने वाली हैं खासतौर पर उनकी फराहमी जो है वो यकीनी बनाई जा सके। इकदाम तो होते हुए हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अब कुछ बात कर लेते हैं कोरोना केसेस की ग्राफ पर, जो बहुत तेजी से हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बताया जा रहा है कि 97 रिजवान मजीद अफराद ऐसे हैं जो जान की बाजी हार गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हालात क्या हैं, आप किसी भी मार्केट में चली जाइए। आज मैं देख रही थी हफीज सेंटर लाहौर की एक फुटेज, वहां पर एक गेट नस्ब किया गया है डिसइंफेक्ट करने के लिए लोगों के, जो लोग वहां से गुजर रहे हैं उनको, ताकि वो लोग अच्छे तरीके से बाजार में आ सके, शॉपिंग कर सके। वहां पर हम देख रही हूँ एक वक्त में दर्जनों लोग, जिस गेट से एक एक आदमी को गुजरना चाहिए, दर्जनों लोग हमें गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कोई उनका टेम्परेचर चेक करने के लिए निजाम जो है वो सही तौर पर काम नहीं कर रहा है। खचा खचा लोग जो है मोबाइल खरीदने के लिए, अपने गैजेट्स खरीदने के लिए मार्केट्स में आ रहे हैं। मतलब
गैजेट्स प्यारे हैं रिजवान, जान प्यारी नहीं है। अच्छा, और उसके बाद ये देखें कि ये कहा गया है कि जनाब बिल्कुल ज़रूरी अगर आपकी कोई ज़रूरत ज़िंदगी है तो उसको हासिल करने के लिए, उसको लेने के लिए, खरीदो फरोख्त करने के लिए आप घर से निकलें। आपने बिल्कुल सही कहा, गैजेट्स खरीदने के लिए, मोबाइल खरीदने के लिए, उसको ठीक कराने के लिए लोग जो है वो घरों से बाहर निकल रहे हैं और उससे हथेली पर रखकर अपनी ही नहीं बल्कि इससे भी बड़ी बात यह है कि दूसरों की जान, और वो दूसरे कौन है, अपने प्यारे हैं, अपने बच्चे हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, बहुत ज्यादा अफसोस होता है। अच्छा, एसओपीज के हवाले से आसमा ये बात भी नोटिस में लाई गई है कि सिर्फ अवाम ही नहीं जो कि अमल दरामद नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं कि दुकानों में भी हम जाते हैं तो अगर आपको इल्म हो, जिन दिनों में ये लॉकडाउन नर्म किया गया था और कारोबार खोलने की इजाजत दी गई थी, तो उन दिनों में जो एसओपीज 20 या 25 एसओपीज बनाए गए थे ताजरों के साथ मिलकर, उनकी कम्युनिटी के साथ, उनकी जो बाकायदा क़यादत थी उसके साथ, उसमें यह था कि दुकानदार भी इस बात को इंश्योर करेगा कि वो मास्क के बगैर किसी को कोई चीज खरीदो फरोख्त नहीं करेगा। दूसरा, टेम्परेचर, वो थर्मल गन जो होती है वो थर्मोगन उसके पास होगी, टेम्परेचर चेक होगा, सैनिटाइजर रखा जाएगा। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि बड़ी बड़ी दुकानों में, छोटी दुकानें, छोटे बाजार, ये जो राजा बाजार और चूड़ी बाजार, मोती बाजार है, इनको तो छोड़ें आप, बड़े बड़े बाजारों में भी, बड़े बड़े मॉल्स में भी जो है वो बिल्कुल किसी भी किस्म का कोई एसओपी जो है वो उसको ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा। कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने घरों तक महदूद रहें ताकि ना बाहर निकलें, ना ही जो है वो कोई कोरोना वायरस का विक्टिम बनने का खतरा हो, और ना ही हम वापस फिर जब कैरियर बनकर आएं खुदा ना खास्ता तो ना ही अपने बच्चों और अपने प्यारों के लिए खतरा बने। बिल्कुल जी, इस वक्त हमारे साथ शाज़ली मंजूर साहब मौजूद हैं और डॉक्टर शाज़ली अक्सर हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं, आज भी हमारा साथ दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। डॉक्टर साहब, रोजाना ही तकरीबन हम आपको जहमत दे रहे होते हैं, पर क्या करें, हमारे बार बार कहने के बावजूद लोग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। आप ही कुछ बता दीजिए कि आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में अब पेशेंट्स जो हैं आपके पास आ रहे हैं? पहले तो चले मामूली नज़ला, जुकाम, खांसी, इस तरह की चीजें, या सीने का कोई और मरज, सांस का प्रॉब्लम लेकर लोग आपके पास आते होंगे, लेकिन अब तो कोरोना पेशेंट्स भी आ रहे होंगे सर। जी, अभी तो जाहिर बात है कि कोरोना ही पेशेंट है। मतलब ये लास्ट अभी मैंने कोई 20 के करीब मरीज देखे, 20 में से तकरीबन 19 मरीज जो थे वो कोरोना ही थे। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ज्यादा तादाद होगी। और जिस तरह आपने कहा कि लोगों में अवेयरनेस के स्प्रेड करने के बावजूद जो है वो अपना ख्याल नहीं रख रहे और जो एसओपीज हैं वो फॉलो नहीं कर रहे, और तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है, अनकंट्रोल होता जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि 20 में से तकरीबन 19 मरीज जो हैं वो इस वक्त अगर आपने देखे हैं तो वो देखे हैं कोरोना के। बिल्कुल ये बात हमें पता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो मसरूफ डॉक्टर्स होंगे जो कोरोना पेशेंट्स को डील कर रहे होंगे वो पल्मोनोलॉजिस्ट, माहिर अमराज सीना ही होंगे। तो आप जरा ये शेयर कीजिएगा कि पहले जो मरीज आते थे सीने से रिलेटेड अपने अमराज को लेकर, और अब जो कोरोना पेशेंट्स आते हैं, कुछ फर्क होता है उनके अमराज में, उनकी अलामात में, या सेम होती हैं? और आप किस तरह पहचान पाते हैं इनिशियली कि ये कोरोना पेशेंट है और ये नहीं है? अब तो ये हाल हो गया कि जो मरीज आता है वो कोरोना ही होता है रिजवान, वो और कोई हम सस्पेक्ट ही नहीं करते। बहुत कम, अपने वैसे भी लोगों का आना कम हो गया है मुख्तलिफ और बीमारियों की वजह से, जिसमें टीबी है, बाकी और उनके इश्यूज हैं, कैंसर है, कोई एलर्जीज हैं, वो लोग अब नहीं आते और ज्यादा तादाद उनकी बढ़ गई है। जैसे मैंने कहा, ये तो मैं सिर्फ आपको क्लिनिक का बता रहा हूँ, जो हमारे पास इमरजेंसी में आ रहे हैं, जो लोग दाखिल हो रहे हैं, वो बहुत बड़ी तादाद है। लोगों को बेड्स नहीं मिल रहा, लोगों को बेचारे बाहर खड़े हुए, एम्बुलेंसों में खड़े हुए, गाड़ियों में खड़े हुए हैं, व्हील चेयरों पे खड़े, ये उनकी अलग तादाद है। तो वो रोजाना कितने फोन आ रहे हैं कि जी हमें बेड दे दें, हमें बेड नहीं मिल रहा, हम कहाँ जाएं, वो अलग एक रुदाद है। तो ये तो मैं आपको सिर्फ क्लिनिक का बता रहा था कि ये हालत क्लिनिक है। अब इतनी पहचान हो गई है कि हमें पता है ये जो मरीज अंदर आए ये कोरोना का ही है। ठीक है, अब आपको यानी देखकर भी पता चल जाता है अगर किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है या किसी को शदीद बुखार हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि शरह क्या है? अगर हम अमवात के हवाले से बात करें, आपके अपने पास जो पेशेंट्स आते हैं, कितने ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं कोरोना का शिकार होने के बाद? उनमें से कितने ऐसे हैं आप बता पाएं अगर, कि जो शफाशाब हो जाते हैं, घरों को चले जाते हैं, और खुदा न खास्ता कितने ऐसे हैं जो अपनी जान गंवा बैठते हैं इस मरज की वजह से? जी, बहुत सारे लोग तो देखें मैं क्लिनिक में ही ट्रीट कर लेते हैं। ऑक्सीजन पे अब लोग आ रहे हैं, ऑक्सीजन पे बहुत सारे लोग मैंने मरीज अभी क्लिनिक में देखे जो ऑक्सीजन पे हम रख देते हैं, बेड्स नहीं है, उनको हम रख नहीं सकते। तो ज्यादातर हम कोशिश करते हैं दाखिल ना करें,
और इनको जो है घर भेज दें, जिसमें यंग लोग ज्यादा हैं, मिडिल एज लोग ज्यादा हैं, लेकिन जो बूढ़े लोग हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी सांस बहुत खराब है, तो उनको हम जो है एडमिट कर लेते हैं। और उसमें शरह अमवात अगर दाखिल हो जाए तो जरूरी नहीं है कि खुदा न खास्ता सब लोगों की अमवात हो जाती है। और हमारे पास अगर 70-80 मरीज है तो 3-4 ही उसमें से ऐसे होते हैं जो कि अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो उस लिहाज से तादाद नहीं है, लेकिन बीमारी बहुत फैल गई है और अब हेल्थ केयर पे बर्डन बहुत हो गया है, डॉक्टर्स के पास एक्सेस कम हो गई है, ओवर बर्डन और ओवर वर्क हो गया है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपके क्लिनिक में आने का मेरा भी पिछले दिनों इत्तेफाक हुआ था। आई वुड अप्रिशिएट डेफिनेटली कि आपके क्लिनिक में SOPs जो थे वो बिल्कुल अच्छे तरीके से उन पर अमल दरामद हो रहा था, मास्क के बगैर एंटर नहीं होने दिया जा रहा था, सैनिटाइज करवाए जा रहे थे हाथ, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप जरा ये शेयर कीजिएगा, ये जो हिफाजती एहतियाती तदाबीर हैं ये किस हद तक जरूरी हैं, किस हद तक हम इनसे बच सकते हैं, और इसके पीछे पे टेक्निकल या मेडिकल रीजन क्या है कि अगर ये हम मास्क वगैरह लगाते हैं, सैनिटाइज करते हैं तो हम बच जाएंगे इससे, कोरोना से? देखिए, 2 चीजों से दुनिया ने इस पे वो कंट्रोल पाया है। दुनिया के दूसरे ममालिक में कहीं भी आप चले जाएं, इवन सऊदी अरेबिया ले लें, मुस्लिम कंट्रीज ले लें, बाहर ले लें, UK और स्पेन है, बाकी लोग, तो उनमें 2 चीजों से उन्होंने कंट्रोल किया। एक तो लॉकडाउन था डेफिनेटली, और दूसरा ये था कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज करना, हाथ धोना, और ऐसे फजूल जगहों पे नहीं जाना जहां ओवर क्राउडेड एरिया है, या ऐसी तकरीबात में नहीं जाना जैसे हमारे यहाँ फौतगी हो या शादियां हो, उनको अवॉइड करना, ये कोई और गैदरिंग है। तो इससे डेफिनेटली फर्क पड़ता है फैलाव में। और WHO ने तो अपनी दोबारा से अपनी स्टेटमेंट वापस मेरे ख्याल से आज ले ली है, अगर मैं गलत ना हूं, कि एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन लोगों में रहती है। तो जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं जिनको कोई अलामात नहीं है, उनसे आपको अभी भी डेंजर है कि अगर वो वायरस कैरी करते हैं तो वो आप लोगों को दे सकते हैं। इसलिए मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, जिन लोगों को हो गया वो क्वारंटीन में रहना, पब्लिक गैदरिंग में ना जाना, बहुत ज्यादा जो है आप शॉपिंग के लिए नहीं निकलना, आई थिंक इससे ही बचा जा सकता है। और यही एक मेन तरीका है। बाकी इसका कोई रिजवान क्योर नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है इसकी। तो कोई वैक्सीन नहीं है, कोई इलाज नहीं है, एहतियाती तदाबीर हैं सर, आप कह रहे हैं कि इनको इख्तियार करके हम बच सकते हैं। बहरहाल डॉक्टर शाज़ी मंजूर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। आप हमारे न्यूज़ के लिए अपना वक्त निकाल रहे होते हैं कीमती। अच्छा जी, डॉक्टर शाज़ी मंजूर ये कह रहे थे कि SOPs पर अमल दरामद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं मुख्तसरन चाहूंगी कि कुछ आपसे शेयर कर लें कि हम आप कितना इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इन SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं। बताया गया है हमें कि गुज़श्ता जो 24 घंटे गुजरे हैं, यानी कल से लेकर आज तक पाकिस्तान भर के अंदर ये 10,557 से जायद बार मुख्तलिफ जगहों पर सेहत की खिलाफ वर्जियां होते देखी गई हैं। इस दौरान 1252 से ज्यादा मार्केटों, दुकानों, 12 सनतों और 1148 ट्रांसपोर्टर्स को मोहतात न रहने पर जुर्माना किया गया है, सील किया गया है। वही बात जो शाज़ी मंजूर साहब कर रहे थे कि जी शॉपिंग के लिए ना जाएं, हमें तो लाजमी जाना है। अगर आप किसी ट्रांसपोर्ट में सफर कर रहे हैं, बस में बैठ रहे हैं, वैन में बैठ रहे हैं, फासले का ख्याल रखें, हमें बिल्कुल नहीं रखना है। हमें उसी वैन में चढ़ना है, अगली वैन का हमें वेट नहीं करना है, क्योंकि हमें इंतजार करने की आदत नहीं है। और इस तमाम चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि फैलाव को रोकना तो नामुमकिन ही हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है आसमा, बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा, बहुत ज्यादा। अच्छा, फिर उससे भी बड़ी बात मैं रवैये और रुझान की बात करूंगा कि चलें ये तो इन पे आपने जैसे जुर्माने बता दिए, ये सब कुछ गई, हमारे रवैयों में ये बात आ गई है कि ये अभी भी लोग, यानी इतने ज्यादा लोग जो है वो इंतकाल कर गए हैं, पूरी दुनिया सफर कर रही है इससे, लेकिन उसके बाद अभी भी पाकिस्तान में लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि जी कोई कोरोना नहीं है और ये सब का सब जो है वो झूठ है, फेक है, ये कॉन्कॉक्टेड से स्टोरीज हैं और इसमें कोई ऐसा नहीं है, देखें मुझे कोरोना नहीं हुआ। तो ऐसा बहरहाल ये रवैया जो है हमें अपना खत्म करना है, क्योंकि पूरी दुनिया नाज़रीन इससे सफर कर रही है। पाकिस्तान तो अभी भी बहुत बेहतर सूरत हाल रखता है जो पूरी दुनिया का। अगर आप यूरोप और कॉन्टिनेंट, अमेरिकन कॉन्टिनेंट और हमारे हमसाया मुल्क भारत को देखें तो वहां पर बहुत खराब सिचुएशन है। तो दुनिया भर में नाज़रीन जैसे हम बात कर रहे हैं कि दुनिया इसका शिकार हो चुकी है, पूरा ग्लोब इसने अपनी लपेट में लिया है और देखते ही देखते 2-3 महीनों में लिया है। तो जनाब 79,97,000 पेशेंट्स जो हैं वो विक्टिम्स इसके कोरोना वायरस के वो हुए हैं पूरी दुनिया में, और हलाकतों की तादाद
45,000 से 85,000 से तजावुज कर गई है। अब तक 41 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। बिल्कुल जी, और वही बात, दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क अभी भी अमेरिका ही है, क्योंकि वहाँ अब मुतासरीन और बढ़ चुके हैं। इनकी तादाद 21,62,000 से ज्यादा हो गई है और 1,17,853 से ज्यादा यहाँ पर हलाकतें हुई हैं। ब्राजील दूसरे नंबर पर है, क्योंकि यहाँ अमवात की अगर बात की जाए तो ये दूसरे नंबर पर आया है। 8,67,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर अब भी मुतासरीन में हैं। ये देखिए जी किस तरह से हालत हो जाती है, किस तरह से अस्पताल के ऊपर ले जाया जाता है। खुद अगर मैं अपने तजुर्बे की बात करूँ या आप अपने तजुर्बे की बात करें, कोई दिन ऐसा नहीं होता है रिजवान कि आप सुबह उठ के अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोलें तो उस पर आपको ना पता चले कि आपके किसी दोस्त के फादर की, मदर की, बहन की, भाई की या आंटी, किसी की भी ऐसे रिश्ते की डेथ न हुई हो। कोई ना कोई केस रोजाना ऐसा रिपोर्ट हो रहा है। लेकिन अब तो ऐसा भी है कि 2-3 लोग जो हैं ऐसे हमारे जानने वालों में से वो रोजाना फेसबुक पे अनाउंस कर रहे होते हैं कि जी हमारी फैमिली में इंतकाल हो गया है। लेकिन ये लोग भी एक चीज ये भी करते हैं कि छुपाने की बहुत कोशिश की जाती है कि नहीं जी मेरी वालिदा का इंतकाल तो है लेकिन उनको कोरोना नहीं था, मेरे वालिद का इंतकाल तो हुआ लेकिन उनको कोरोना नहीं था, बस 3-4 दिन में वो बिल्कुल सेहतयाब थे लेकिन वो गुजर गए हैं। अगर ऐसा है तो आपको इससे कोई घबराने की, छुपाने की, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। ये तो एक वबा है, ये तो कहीं भी किसी को भी लग सकती है। मैं, रिजवान, हम लोग अगर ऑफिस आ रहे हैं और एहतियात नहीं कर रहे हैं तो हम भी इसका शिकार हो रहे हैं। तो इसमें शर्मिंदा होने की, छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप अपने प्यारों के लिए गलत करेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही, अपने प्यारों के लिए गलत करेंगे और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात की कि इसमें ये एक वबा है, ये एक बीमारी है, ये एक मरज है जो कि फैलता जा रहा है। हमें उसको रोकना है, ये हमें अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभानी है। नाज़रीन, इस वक्त अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कुछ टिड्डी दल के हवाले से। नाज़रीन, टिड्डी दल ने हमला किया है और मुल्क के 40 से ज्यादा अजला हैं जहां पर पूरा ये टिड्डी दल फैला है और इसने फसलों को तबाह किया है। ट्रीटमेंट की जा रही है, सर्वे सबसे पहले इसका जो है वो सर्वे किया जाता है, उसके बाद उन रकबों की ट्रीटमेंट भी जो है वो शुरू कर दी है। लाखों एकड़ रकबे का जो है वो सर्वे किया गया है। इसी तरह से हजारों एकड़ रकबे की ट्रीटमेंट भी अब तक की जा चुकी है। चारों सूबों में ये फैल चुका है। बलूचिस्तान से एंटर हुआ था, बलूचिस्तान के सबसे ज्यादा अजला इससे मुतासर हुए हैं, 29 अजला हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 8 हैं, सिंध के 3 हैं और पंजाब के जो है वो 2 हैं और जैसे मियांवाली है, मुजफ्फरगढ़ है और डेरा गाजी खान है। कुछ तीसरे जिले के भी कुछ फसलें या कुछ इलाके ऐसे हैं आसमा जो कि मुतासर हुए टिड्डी दल से, लेकिन बहरहाल ट्रीटमेंट का अमल जो है वो जारी है। बिल्कुल जी, सिंध में हमें बताया जा रहा है शहीद बेनज़ीराबाद है, मटियारी है, जामशोरों है, वहाँ भी टिड्डी दल ने हमला किया है। लेकिन जी गुज़श्ता रोज की अगर हम बात करें तो पंजाब के किसी जिले से टिड्डी दल जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ कि उसने यहाँ पर हमला किया हो। इसी बारे में हम बात कर लेते हैं। नवीद असमत कालू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं महकमा ज़राअत मुल्तान के। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया। नवीद साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। सर पहले भी हम आपसे इसी प्रोग्राम में इसी टिड्डी दल के हवाले से बात कर चुके हैं। अच्छा जी, बताया जा रहा है कि गुज़श्ता रोज पंजाब के किसी जिले में टिड्डी दल रिपोर्ट नहीं हुआ, यही मुल्तान में भी हुआ है, पहले तो ये बता दीजिएगा। बिल्कुल जी, पूरे पंजाब में गुज़श्ता रोज नहीं बल्कि पिछले 8-10 रोज से ना बिल्कुल टिड्डी दल का वजूद नहीं है। महकमा ज़राअत पंजाब, पाक आर्मी, PDMA और जिले इंतजामिया पर मुश्तमिल मुश्तरका टीमों की बेहतरीन हिकमत अमली, सर्वेलेंस, बरवकत कंट्रोल ऑपरेशन और दीगर कार्रवाइयों से सूबा भर से टिड्डी दल का तकरीबन खात्मा कर दिया गया है। हम पूरी तरह कमिटेड हैं कि हमने तमाम मुतल्लिका अदारों के तावन से सूबा को टिड्डी दल से पाक रखना है और ताकि हमारे काश्तकार बिला झिझक और खौफ अपनी फसलों की बेहतर मैनेजमेंट पर तवज्जो दे सकें। इस वक्त तक हुकूमत पंजाब के बरवकत फैसलों, अमली इकदाम और पाक आर्मी की सपोर्ट और इंटरवेंशन से पंजाब में काश्ता फसलों को टिड्डी दल से पहुंचने वाले नुकसान से बचा लिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, 1-2 चीजें मैं आप से और शेयर करूंगा। गुज़श्ता जुलाई से लेकर अब तक टिड्डी दल के हमला से पंजाब के मुतअस्सरा 26 अजला में 1,60,00,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर टिड्डी दल की मौसर निगरानी भी की जा चुकी है।
एंटी टिड्डी दल स्क्वाड जो हमने बनाए हैं उनकी जानब से जदीद तरीन आलात व मशीनरी जो हमारे पास है उसके जरिए 7,60,000 एकड़ से जायद रकबे पर 76,000 लीटर से जायद जरी दायरों का स्प्रे किया जा चुका है। टिड्डी दल से निगरानी के लिए वजीर आला पंजाब की जानब से अपना हेलीकॉप्टर वक्त पर दिया गया है। टिड्डी दल की सर्वेलेंस और कंट्रोल ऑपरेशन में महकमा ज़राअत के 3,000 से जायद एहलकार व अफसरान भी हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा महकमा ज़राअत की 328 गाड़ियां इसमें हिस्सा ले रही हैं। 2,000 से जायद जदीद स्प्रे मशीनरी। अच्छा नवीद साहब आपकी मौजूदगी से जी आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए ये पूछना चाह रहे थे आपसे कि जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि पंजाब से खात्मा कर दिया गया है, सफाया कर दिया गया है, जरा ये शेयर कीजिए क्योंकि अभी बाकी 3 सूबों में मौजूद है जो एडजेसेंट जो बॉर्डर लाइन पे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वहां से दोबारा जो है वो इंटरवेंशन हो सकती है इसकी टिड्डी दल की। एक तो ये बताइएगा कि ये इसको किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, मेक श्योर किया जा रहा है कि वो दोबारा पंजाब में दाखिल ना हो इनका जो टिड्डियों का दल जो है। दूसरा ये कि समर ब्रीडिंग को किस तरह से रोका गया है। बिल्कुल बिल्कुल जी, जहाँ तक दोबारा पंजाब में दाखिल ना होने का तल्लक है इसको तो रोकना जरा मुश्किल है। वो इसलिए कि पंजाब में जब एंटर होगी सेटल होगी तो हमारी जो एंटी टिड्डी दल स्क्वाड है वो ऑपरेशन करेंगे। जो बाकी सूबों में मुतलका महकमे जो है ऑपरेशन कर रहे हैं, पाक आर्मी भी कर रही है, तो चांसेस भी है। परसों एक छोटा सा स्वार्म जो है वो बलूचिस्तान के सूबा जिला मूसा खेर से जो है ना वो डीजी खां के ट्राइबल एरिया में आया था, लेकिन फिर वो जनूबी वजीरिस्तान में जाके सेटल हो गया था। तो चांसेस तो रहते हैं, चांसेस रहेंगे भी, चूंकि इसने चोलिस्तान और राजस्थान की तरफ इसलिए जाना है अपने समर ब्रीडिंग के लिए। तो 2-3 चीजें मैं आपसे और शेयर करूंगा, चूंकि हमारी जो तैयारी है, प्रीपेयर्डनेस है, उसके बारे में आपको बता दूं कि हमारे फार्मर्स को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2,000 से ज्यादा जदीद स्प्रे मशीनरी हमारे पास मौजूद है जो पीडीएमए ने खरीद के दी है। 135 जदीद यूएलवी स्प्रे मशीनें हमारे पास है जो एनडीएमए ने खरीद के महकमा ज़राअत पंजाब को दी है। 20,000 लीटर जो है लेमडा साई एलोथ्रीन हमारे पास मौजूद है। 68,000 लीटर जो है मेलाथियान, ये 96% है, ये डीपीपी के पास है, ये भी हमारे पास बहालपुर में मौजूद है। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर जो है उन्होंने रुझान, लियाकतपुर और खानेवाल में कामयाब फजाई ऑपरेशन के साथ स्वाम को बड़े बड़े स्वाम का ठीक है जी, बहुत से इकदाम किए गए हैं, बड़े बेहतरीन अंदाज में किए गए हैं। नवीद असद काहलू साहब आप डिटेल में हमें बता रहे थे, और जी क्रेडिट भी आप लोगों को दिया जाना चाहिए कि आपकी मेहनत ही की वजह से हम देख रहे हैं कि पिछले काफी दिनों से अब पंजाब के अंदर कम अज कम इसका हमला जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ है। बहरहाल आपके वक्त के लिए असद काहलू साहब बहुत शुक्रिया। रिजवान आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक स्पेशल रिपोर्ट। बिल्कुल जी नाज़रीन, हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है। आज का जो दिन है वो दुनिया भर में बुजुर्गों को नारवा सलूक, यानी जो बुजुर्ग हो जाते हैं, पेरेंट्स डेफिनेटली औलाद उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करती, आकबत अपनी खराब करती है, दुनिया अपनी खराब करती है, लेकिन बहरहाल बुजुर्ग को तकलीफ जो है वो अपनी जगह पर होती है। तो उन बुजुर्गों को नारवा सलूक से बचाने का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। बेसिकली ये दिन मनाने का मकसद यही है कि संगीन मसले की तरफ लोगों की भरपूर तवज्जो दिलाई जा सके, बेहिस लोगों की, और बल्कि आखिरत खराब करना, अपनी आखिरत खराब करना, अपनी जिंदगी खराब करना। तो नाज़रीन ये दिन मनाने की इसकी अहमियत इस दिन के इस हवाले से जो है वो ज्यादा उजागर हो जाती है। नाज़रीन हमारे नुमाइंदे मौज़ुमुद्दीन ने लाहौर से एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। दुनिया भर में बुजुर्गों के साथ नारवा सलूक का आलमी दिन मनाने का मकसद बुजुर्गों के जिस्मानी, जज्बाती और माली इस्तेहसाल के मसले पर आलमी तवज्जो मरकूज कराना है। इस दिन की मुनासबत से दुनिया भर में मुकीम अफराद मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करके इस मसले को उजागर करते हैं। बुजुर्गों के साथ नारवा सलूक के हवाले से 15 जून को मनाया जाने वाला ये दिन अक़वाम मुत्तहिदा की एक करारदाद के नतीजे में वजूद में आया। दुनिया भर में हर 10 में से एक बुजुर्ग इसका शिकार होते हैं। अपने बुजुर्गों की खिदमत करेंगे ना तो कल को हमारी औलाद भी हमारी खिदमत करेगी। जो उम्र रसीदा लोग हैं उनका ख्याल रखें। ये नहीं कि वो जो बच्चे हैं उनके हैं, उनके लिए नहीं, पूरे माशरे के लिए है कि वो ख्याल रखें। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2019 और 2030 के दरमियान दुनिया भर में 60 साल या इससे ज़ायद उम्र के अफराद में 38% इजाफे की तवक्को की जा रही है, और ये इजाफा तरक्की पजीर ममालिक में सबसे ज्यादा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इस सिलसिले में बूढ़े अफराद को मुतासिर करने वाले मखसूस मसाइल पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बुजुर्गों के साथ नारवा सलूक के हवाले से शऊर उजागर करने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ की जा रही हैं ताकि इस संगीन मसले का हल निकाला जा सके। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
بالکل जी, मौज़मुद्दीन की रिपोर्ट आप देख रहे थे किस तरह से नारवा सलूक किया जाता है, इसको तर्क किया जाना चाहिए जहां भी ये हो रहा है. हम भी अपनी जानिब से आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं. बहरहाल जी, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ. कल शाम ठीक 6 बजे न्यूज़ एट 6 के साथ दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह ने के बाद. ताकत जिसके दिल में मौजूद हो, वो चाहे किसी भी मुश्किल में घिर जाए, ईमान उसे हमेशा साबित कदम रखता है. जज्बात में आके रवाना तो हो गया है, लेकिन वापस आता भी है या नहीं? हम आ गए हैं भाई. बस अब बहुत हो चुका. अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी सुलेमान शाह. मैं तैयार हूँ सादे आज़म, अपने भाइयों की तरह मुसलमानों के खिलाफ हाजिर होगा. भाई को भाई का और बाप को बेटे का दुश्मन बना दूंगा. अब तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है? अल्लाह ही बचाएगा, और कौन. निगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही स्वाहा. मन
وائرس کے خلاف جنگ میں مضبوط قوت مدافعت انتہائی اہم ہے۔ یہ ہیں کچھ ایسی غذائیں جو ہماری قوت مدافعت بہتر بنانے میں بے حد مفید ہیں۔ غذا میں دہی کا استعمال قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ اس میں وٹامن ڈی کی پائے جانے والی مقدار ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے۔ قہوے میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس قوت مدافعت بہتر کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مرغی کا گوشت وٹامن B6 کا ذریعہ ہوتا ہے۔ نہ صرف خون کے ذرات پیدا کرنے بلکہ ہڈیوں کے لیے بھی مفید ہے۔ کسی بھی نیٹ ورک سے زیادہ 4G ٹاورز کے ساتھ